کہ لاہور میں گلبرگ کے شاپنگ پلازا میں لگی آگ پر 7 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ پلازا کے تمام فلورز پر آگ بجھا دی گئی ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ امدادی آپریشن میں 20 گاڑیوں اور 60 ریسکیورز نے حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے پر پلازے کے سیکیورٹی انچارج کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گلبرگ کے پلازا میں آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے، آتش زدگی کی وجوہات کا تعین کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ گلبرگ کے شاپنگ پلازا میں لگی آگ پر 7 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ پلازا کے تمام فلورز پر آگ بجھا دی گئی۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ امدادی آپریشن میں 20 گاڑیوں اور 60 ریسکیو ورکرز نے حصہ لیا۔ ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ ڈالنے پر پلازے کے سیکیورٹی انچارج کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی میاں عامر ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، اس وقت تمام صورتحال انڈر کنٹرول کر لی گئی ہے؟ جی بالکل، اس وقت جو رات کو جو آگ لگی تھی جو 7 گھنٹے تک جاری تھی، جس کو ریسکیو 1122 کی ٹیموں نے 7 گھنٹے بعد قابو پا لیا، لیکن اس وقت کولنگ کا عمل جو ہے جاری ہے۔ تو جس سینٹر میں جو شاپنگ سینٹر تھا، یہ لاہور کی مین بلوارڈ گلبرگ کا مین سینٹر تھا، جہاں پر جو بتایا جا رہا ہے ریسکیو کی جانب سے کچھ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے آگ لگی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کافی زیادہ جو ہے لوگوں کا، تاجروں کا، دکانداروں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ جو آگ ہے پہلی منزل پر لگی تھی، جس کو ابھی جو ہے بجھا دیا گیا، لیکن اس وقت تک کولنگ کا عمل جاری ہے۔ لیکن اس وقت دیکھا جائے تو وہاں پر تاجر برادری بھی اکٹھی ہوئی، اور اس کے علاوہ انتظامیہ، ضلع انتظامیہ ریسکیو کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے کولنگ کا عمل جاری ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس وقت تو کافی زیادہ نقصان جو ہے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس وقت پلازا میں تقریباً 400 سے زائد جو دکانیں قائم تھی، اور زیادہ تر دکانیں وہاں پر موبائل فون، ریڈی میڈ گارمنٹس کی تھی، اور ڈی سی لاہور نے اس جو آگ لگی تھی اس کو بجھا دیا گیا، لیکن اس کو ایک گریڈ کی آگ بتایا جا رہا تھا۔ جی میاں عامر، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بات کرتے ہیں سیاسی میدان کی۔ سیاسی رابطوں میں تیزی، مونس الہی کا علی ترین کو ٹیلی فون۔ اون چودھری نے مونس الہی اور علی ترین کی ٹیلی فون پر بات کروائی۔ مسلم لیگ قائد اعظم اور ترین گروپ میں ایک اور رابطہ ہوا۔ مونس الہی نے علی ترین سے ان کے والد جہانگیر ترین کی خیریت دریافت کی، ملکی سیاسی معاملات پر بات چیت کی۔ اون چودھری نے پرویز الہی سے ملاقات بارے آگاہ کیا۔ جہانگیر ترین گروپ نے آج اہم مشاورتی اجلاس لاہور میں طلب کر لیا۔ اجلاس جہانگیر ترین کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں سپہر 3 بجے ہوگا۔ اون چودھری پارٹی رہنماؤں کو چودھری برادران سے ملاقات پر اعتماد ملیں گے۔ ترین گروپ کے اجلاس میں سیاسی رابطوں کے نتیجے میں اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سیاسی رابطوں میں تیزی، مونس الہی کا علی ترین کو ٹیلی فون۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ کیپٹل ٹی وی بیورو چیف شاداب ریاض ہیں۔ جی شاداب، آگاہ کیجیے گا، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے؟ جی بالکل، سیاسی رابطوں میں جیسے پچھلے کچھ دنوں سے کافی گرما گرمی پائی جا رہی ہے، اس سلسلے میں آج بھی وفاقی وزیر مونس الہی نے جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اون چودھری نے علی ترین اور مونس الہی کا جو ہے وہ یہ رابطہ کروایا۔ مسلم لیگ قائد اعظم اور ترین گروپ میں ایک اور رابطہ ہوا۔ مونس الہی نے علی ترین سے ان کے والد جہانگیر ترین کی خیریت دریافت کی، اور ملکی سیاسی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ اون چودھری نے جہانگیر ترین کو پرویز الہی سے ملاقات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ ادھر جہانگیر ترین گروپ نے آج اہم مشاورتی اجلاس جو ہے لاہور میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس جہانگیر ترین کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن میں سپہر 3 بجے جو ہے وہ ہوگا، جس میں اون چودھری پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ اور دیگر رہنما ہوں گے۔ گزشتہ روز چودھری برادران کے ساتھ ہونے والے ملاقات پر اعتماد میں لیں گے۔ ترین گروپ کے اجلاس میں سیاسی رابطوں کے نتیجے پر بھی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ جی بہت شکریہ بیورو چیف کیپٹل ٹی وی شاداب ریاض، آپ علی ترین اور مونس الہی کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کا احوال بتا رہے تھے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے پر مشاورت کی گئی۔ قانونی ماہرین تحریک سے متعلق تجاویز دیں گے، جبکہ ذرائع کے مطابق حکومتی ٹیم اتحادیوں سے رابطے بارے آگاہ کرے گی۔ آزادی چوک میں جلسے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس میں تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے پر مشاورت۔
कानूनी माहिरीन तहरीक से मुतालिक तजावीज़ देंगे। शाकिर अब्बासी नुमाइंदा कैपिटल टीवी लाइन पर मौजूद हैं। जी शाकिर, बताइएगा इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या सामने आई हैं? लेकिन जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। इजलास में तरीक़े अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत की जा रही है। कानूनी माहिरीन जो है वो तरीक़े से मुतल्लिक़ तजावीज़ देंगे। हुकूमत की टीम इत्तेहादियों से रवाबत के हवाले से जो है और आगाह करेगी। आज़ादी चौक में जलसे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके अलावा गवर्नर पंजाब असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। इस इजलास में शेख रशीद, परवेज़ खटक और आमर डोगर भी शरीक हैं, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली और तरीके अदम एतमाद के हवाले से तफसीली जो है वो मुशावरत की जा रही है। जी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तफसीली मुशावरत की जा रही है। शाकिर अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मशावरती इजलास आज होगा। इजलास इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होगा। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे। इजलास में शिरकत के लिए आसिफ अली जरदारी को दावत दे दी गई है, जबकि सरदार अख्तर मेंगल समेत अपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन मदऊ किए गए हैं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शाकिर अब्बासी। शाकिर, बताएगा क्या हिकमत अमली तय की जाने के इम्कानात जाहिर हो रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद में सियासी हिकमत अमलियों के आखिरी राउंड खेले जा रहे हैं और इसी सिलसिले की कड़ी में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको आज जो है वो इशाइये पे मदद किया और साथ साथ अपोजिशन का जो है मुश्तरका इजलास होगा। इस इजलास में आइंदा की जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। नंबर गेम के हवाले से बात होगी हुकूमती अलायंस से और जो हुकूमती जो जमात के रकीन से राब्ते हुए उस हवाले से जो है वो हिकमत अमली तय की जाएगी और नंबर गेम के हवाले से डिस्कशन की जाएगी और तरीके अदम एतमाद के हवाले से जो है वो मुशावरत की जाएगी और आइंदा की हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। जी, सियासी राबतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। शाकिर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। करीब से खिताब कर रहे हैं। With our northern neighbors, so we've gone forward, and I'm very happy to say that next Monday, 21st of March, inshallah, for the first time in our history, Pakistani trucks can go into Afghanistan, go into Uzbekistan. Uzbek trucks will come into Pakistan, Afghani trucks will come into Pakistan, and this is the beginning, a step towards regional connectivity. If trucks in Portugal can go through Spain, France, Germany, and end up in the Netherlands, why can't our trucks grow from here straight through to Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and beyond? We have put the transit trade agreement in place, the trucking in place, the custom unions are integrated, valuation agreements have been integrated. So now we are all set, and this big step is starting next Monday. Why am I so excited about the Central Asian republics? Central Asian republics are a population of 72 million. They do trade of 800 billion. And just on the sympathy of we're moving together, no agreements were signed. And during that period, our exports to the Central Asian republics grew by 147%. So it just shows the type of opportunities we have. So now, and the thing that has not been talked about, and I want to mention a little bit, so that means we get it in the right framework for our Chinese partners and our Pakistanis. The guiding principle Khalid Mansoor did mention, and I want to re-emphasize it, this investments through CPEC is not China specific. Everybody can come forward, and we've discussed this very thing at the highest level in China, and also they were agreeing. So ladies and gentlemen,
what are the guiding principles that we've been trying to move for the last 3 years, and I honestly feel that it is beginning to show results substantially. One of the principles was move away from being a trading economy to a manufacturing economy. We do not want just import of finished goods and use that as the engine of growth for our GDP. No. We want import substitution and through that make in Pakistan. We must make in Pakistan, and then once we have made in Pakistan, it's an export-led growth strategy. We must export, export, export. That is our long-term. कराची में मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सी पैक से इलाकाई रवाबित में इजाफा हुआ, चीन के ताउन से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया, इलाकाई रवाबित में इजाफा खुशी की बात है। सेंट्रल एशिया में बेशुमार मौके मौजूद हैं, फ़ायदा उठाना होगा। मजीद कहा कि 21 मार्च से पाकिस्तान की तिजारत में रीजनल कनेक्टिविटी का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हमारे ट्रक 21 मार्च से अफगानिस्तान बरास्ता अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान और दीगर सेंट्रल एशियन ममालिक में जाना शुरू हो जाएंगे, जब पुर्तगाल के ट्रक स्पेन और स्पेन से ट्रक नीदरलैंड्स और यूरोप के दीगर ममालिक में जा सकते हैं, तो हमारे यहाँ भी रीजनल कनेक्टिविटी के ज़रिए तिजारत हो सकती है। अब बात करते हैं एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। गवाहान को प्लॉट मिल गए हैं, फिर बयान क्यों कलमबंद करा रहे हैं? अदालत का इस्तफसार, जब ये रेफरेंस दायर किया गया तब प्लॉट नहीं मिले थे। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बताया गया। मुझे इजाजत दी जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, साद रफीक की जानिब से ये कहा गया। किसी वक्त भी असेंबली सेशन की कॉल आ सकती है। जब असेंबली सेशन हुआ तो हमारे लिए अदालत आना मुश्किल होगा। साद रफीक ने मजीद क्या कहा, जानेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज ने। जी शादाब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, साद रफीक और अदालत के दरमियान जो मुकालमा हुआ। जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस में की समाअत 30 मार्च तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने जो है वो केस पर समाअत की। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक दोनों जो है वो अदालत में पेश हुए। गवाहान को प्लाट मिल चुके हैं, फिर भी ये क्यों बयान कलमबंद करवा रहे हैं? अदालत ने ये इस्तफसार किया, जिस पर प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को बताया गया कि ये रेफरेंस दायर किया गया था, तब इनको प्लाट नहीं मिले थे। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अदालत उनको इजाजत दे, वो बात करना चाहते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि किसी भी वक्त असेंबली का सेशन की कॉल आ सकती है। जब असेंबली सेशन हुआ तो हमारे लिए अदालत आना मुश्किल होगा। अदालत ने इस मुकदमा में लंबी तारीख दे, उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई। गवाह फरीहा और सादिया ने जो है अपने बयानात कलमबंद करवाए। 2018 में उनसे सोसाइटी का जो है अखबार से पता चला कि वो एक प्लॉट है जो 5 मरले का प्लॉट है वो देना चाह रहे हैं। इसके बाद में प्लॉट की जगह जो है वो तब्दील कर दी गई। नैब ने दरख्वास्त दायर की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उनके अलावा इसमें कहा गया कि 2019 में दोबारा नैब में दरख्वास्त दायर की। फरवरी 2020 में मुझे प्लॉट फराहम कर दिया गया, जिसे बाद में मैंने फरोख्त कर दिया। अदालत ने बयानात सुनने के बाद केस की समाअत 30 तारीख तक जो है वो मुलतवी कर दी है। जी, समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। ब्यूरो चीफ लाहौर कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल लिए चलेंगे, जहां पर मामले खुसूसी फैसल सुल्तान ने दौरा किया है। पता चल रहा है कि कौन सा मरीज जो है वो ज़्यादा बीमार है, कौन सा कम है, ताकि उनको बर वक्त और उनकी बीमारी की शिद्दत के मुताबिक जल्दी या थोड़ी सी ताख़ीर के साथ देखा जाए। तो ये सारा निज़ाम है जो सारी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है, और इसको अपनाने में हमारे क्वालिटी और मियार जो है इलाज का और एमरजेंसी केयर का वो बेहतर होगा। अभी मेरी कोशिश है कि मैं जाके ब्लड बैंक का भी विज़िट करूँ, क्योंकि जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है बहुत अहम है। हमने यहाँ एक रीजनल ब्लड सेंटर इस्लामाबाद में खोला है, तो इनकी और हमारे पिम्स के जो ब्लड सेंटर की कोऑपरेशन है, उसके ज़रिए हमारे पेशेंट्स को मियारी, सेफ और इन्फेक्शन फ्री
ब्लड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह मुयस्सर हो रही हैं और वो फर्दर अगले म्यार पे जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ कहलाती है जिसको नेट बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग, यानी जो डीएनए के लेवल पे उसको वबाई अमराज को चेक किया जाता है और अगर किसी ब्लड में सैंपल में हो तो उसको हटा दिया जाता है, तो साफ़ और जो सेफ़ ब्लड है उसकी ट्रांसफ्यूजन को मुमकिन बनाया जाता है। तो उसको भी इंशाल्लाह भी विजिट करते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ। बहुत शुक्रिया। फैसल पिम्स अस्पताल का दौरा कर रहे थे। उन्होंने कहा सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सेहत कार्ड शहरियों के लिए एक सहूलत है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, फैसल सुल्तान का मजीद ये कहना था। अभी आपको बताएं कि फैसले करीब हैं, इमरान खान को जाना होगा। ख्वाजा साद रफ़ी की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला पहले मरकज़ में होगा। ख्वाजा साद रफ़ी ये भी कहते हैं कि अवाम इमरान खान की पॉलिसियों से तंग हैं, जबकि पीटीआई के अपने लोग इनसे तंग हैं। ख्वाजा साद रफ़ी ये भी कहते हैं कि पीटीआई अरकान की बड़ी तादाद ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ अब कोई नहीं रहना चाहता। पार्लियामेंट लॉजिस में तमाशा लगाया गया। मजीद आपको बताएं कि रहनुमा साद रफ़ीक ने क्या कहा, सुनवाते हैं। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इकदाम करवाना चाहता है, तभी वो वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार, वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो एमएनए का है। तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ये हमें धमकियां दे रहा है और उनको धमकियां दे रहा है कि जी मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, मैं घेराव करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। मुख्तलिफ राय लोगों की, वो एक राय बन जाएगी। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता। ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता। नया मैंडेट चाहिए, अवाम के अंदर जाएं, जिसे चाहे लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का, लोग उसको वोट दे देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों सीनियर सहाफियों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मेनुल्लाह ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह अदालत में पेश हुए। अमरीन अली नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अमरीन अली, अदालती कार्रवाई के हवाले से आगाह कीजिएगा। देखो जी, आज दौरान समाअत फरदुल्लाह बाबत के वकील उसामा खावर ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि डायरेक्टर FIA साहब हक के इज्जत की ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस में आपने अदालत को मुतमईन करना है। आपने अदालत को ये बताना है कि तस्दीक आमेज क्या था जो आपने इंक्वायरी शुरू की। केसेस तो 94,000 हैं, डायरेक्टर ने बताया, जबकि चीफ जस्टिस ने कहा जो अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस है इनमें अदालत को मुतमईन करें। ये तासुर दिया जा रहा है कि ये कानून बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। खातून का तो केस ही अलग है, उनको तो अदालत ने रिलीफ दिया था, जबकि मातहत अदालत ने खातून MNA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। इस शिकायत में हद का आमेज क्या था, कुछ तो होगा जिस बुनियाद पर आपने कार्रवाई की। जबकि चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने बताना है कि FIA से पब्लिक होल्डर का तहफ़्फ़ुज़ क्यों कर रहा है, पब्लिक ऑफिस होल्डर का फिर एहतसाब कैसे किया जाएगा। फेक न्यूज़ का तोड़ मजीद सच्ची खबरें हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब करते हुए केस 21 मार्च तक मुलतवी कर दिया है। जी, केस 21 मार्च तक मुलतवी कर दिया। अमरीन अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।